जलाशय की जीर्णोद्धार के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हाई प्रोफाइल इलाकों में मृतक राजमिस्त्री और राजमिस्त्री के सहायक के नाम बबलू शेख और हुमायूं शेख मुर्शिदाबाद के निवासी है। हाई प्रोफाइल इलाके में दुर्गापुर के वार्ड नंबर 27 के पार्क एवेन्यू क्षेत्र में आसनसोल दुर्गापुर विकास वार्ड के एक हाउसिंग रिजर्व का नवीनीकरण चल रहा था। पहले मुर्शिदाबाद के राजमिस्त्री व सहायक उस जलाशय की ढलाई कर घर चले गए। राजमिस्त्री का सहायक बबलू शेख 15 दिन बाद बुधवार को वेल्डिंग का पट्टा खोलने के लिए वापस आया। जलाशय के नीचे से आ रही तेज दुर्गंध से बबलू का दम घुट रहा था। चिल्लाते ही राजमिस्त्री हुमायूं शेख जलाशय में कूद गया। उस दुर्गंध से हुमायूं शेख का भी दम घुटने लगा। ऊपर मौजूद एक अन्य राजमिस्त्री के सहायक ने चिल्लाया तो स्थानीय लोग दौड़ कर आए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना न्यू टाउनशिप थाने के पुलिस और दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग के कर्मियों ने गंभीर हालत में 2 लोगों को बचाया। न्यू टाउनशिप थाने के पुलिस दोनों को विधाननगर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिर शवों को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकुमा अस्पताल ले जाया गया। घर की देखरेख करने वाली कंचन नायक ने कहा कि उस घर में संजीव चैटर्जी रहते थे। कोरोना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और उनके बेटे भी सऊदी अरब में रहते हैं। फिलहाल उस घर की देखभाल मैं कर रहा हूं। मैं काम कर रहा था। आज सुबह जलाशय के जीर्णोद्धार करने के दौरान दरवाजा खोलने के दौरान राजमिस्त्री हुमायूं शेख और राजमिस्त्री के सहायक बबलू शेख की दम घुटने से मृत्यु हो गई। এখানে যে দুজন মারা গেছেন তাদের একজনের নাম মানে যে কন্ট্রাক্টর তার নাম হচ্ছে হুমায়ুন শেখ। ওর কাছে একজন মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতো, তার নামও হচ্ছে বাবলু শেখ। কি হয়েছিল ঘটনা? এখন এখানে হয়েছে দুর্গাপুরের এই যে ব্যাংক কলোনির মোড়ে একটি প্রাইভেট বাড়িতে রিজার্ভারের ছাদ ঢালাই হয়েছিল। জলের রিজার্ভারের ছাদ ঢালাই হয়েছিল। সেটা মোটামুটি মনে হয় 20-25 দিন হয়েছিল। তার ম্যান হোলগুলো বন্ধ করা ছিল। আজকে ওই ম্যান হোলের ঢাকনা খুলে তারা যখন নিচে ওই শাটার কাটা খোলার কাজ করতে যায়, তখন কিন্তু প্রথমে একজন ঢুকেছে, সে কিন্তু মাথা করে ওখানে বসে যায়। তাকে উদ্ধার করার জন্যে হুমায়ুন শেখ মানে যে কন্ট্রাক্টর সে নেমে সেও মাথা করে বসে যায়। পরে লোকজন পাশের থেকে এসে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়। তখন দেখা যায় যে তারা দুজনেই মারা গেছে। ওখানে পুলিশ এসছে, ফায়ার ব্রিগেড এসছে, মিশনে নিয়ে গিয়েছিলাম, ওদিকে ডেথ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একজন এখনও ভর্তি রয়েছে আর 2 জন স্পটেই মারা গেছেন, তারা বিধাননগরের হসপিটালে রয়েছেন। একজন ঢুকে গেছে, একজন ওনাকে দেখে বাঁচাতে গিয়ে আরেকজন আর কি ঢুকে পড়ে। আরেকজনকে বাঁচাতে গিয়ে কোনো রকম ওকে বাইরে বার করে। মানে 3জন ঢুকেছিল। 3জনের মধ্যে একজনকে বার করা হয়েছিল, 2জনকে বার করতে পারে। দমকল এসেছিল কি? দমকল এসেছিল। দমকল প্রায় 15 মিনিট পরই চলে এসে খবর দেওয়ার পর। দুজনেই কি মারা গেছে? 2জনে আশা করি ওই জলের রিজার্ভার মেরামতি করতে গিয়ে আর কি বিধাননগরেই হয়েছে। স্যার কী করে এটা হতে পারে? মানে এরকম এটা কোনো গ্যাস থেকে? আমি যেটা শুনলাম যে একটা ট্যাঙ্ক অনেকদিন ধরে বন্ধ ছিল, জলের ট্যাঙ্ক। সেই ট্যাঙ্কটা বোধহয় রিপেয়ার করার জন্য আমাদের শ্রমিকরা নেমেছিল। ট্যাঙ্কটা অনেক ধরেই বন্ধ ছিল। যদি কোনো ট্যাঙ্ক বা রিজার্ভার বন্ধ থাকে তাহলে সেখানে বিষাক্ত গ্যাস জমতেই পারে। সেই বিষাক্ত গ্যাস থেকে ওইটা আমাদের সাফোকেটেড হয়ে পড়ে পেশেন্টটা হয়তো এক্সপায়ার করে গেছে। কি গ্যাস জন্মাতে পারে স্যার? এখন জেনারেলি তো আমাদের ফোলিয়ারিবেল যে থাকে না বিষাক্ত গ্যাসটা, মিথেন গ্যাস মিশে হতে পারে, ওজন হতে পারে। হ্যাঁ, মিথেন হতে পারে, ওজন হতে পারে। তার কোথাকার বাসিন্দা? ওরা মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা, এখানে থাকে। আচ্ছা, বিভিন্ন জনকে কাজটা দেওয়া হয়েছিল। এবারে সে ঢালাই করে বাড়ি গেছিলো, পরব পেরিয়ে 3-4 দিন হলে এসছে। নিয়ে আজকে পাটাগুলো নিয়ে যাবে। সেই পাটাগুলো খুলে ওর একটা লোককে নামিয়েছিল। আর সে তখন ল্যাক অফ অক্সিজেন হচ্ছিল খুব সম্ভবত। তাহলে কি পাটা খুলতে এসেছিল? পাটা খুলতে এসেছিল। নিয়ে ও ল্যাক অফ অক্সিজেন হতে এ নিজে নেমে আবার ওকে তুলতে গেল। তুলতে যাওয়াতে এও কিছুক্ষণ পরে অজ্ঞান হয়ে গেল। আমরা দেখছি অজ্ঞান হয়ে গেছি, কথা বলছে না। তখন আমরা পুলিশে খবর দিলাম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह की ट्रेनें करीब 30 से 40 मिनट की देरी से चल रही थी। इससे यात्री नाराज हो गए। डायमंड हार्बर सियालदह लोकल दैनिक यात्रियों ने ट्रेन में देरी आरोप लगाते हुए बुधवार को ट्रेन रोक दी। इससे ट्रेनों को रोकने के कारण शाखा पर रेल सेवा पूरी तरह से बाधित हो गई। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज सैकड़ों लोग रेलवे लाइन पर उतरते हुए देखा गया। उनकी एक ही मांग है कि ट्रेन समय पर छूटे। सूचना मिलने पर GRP मौके पर पहुंची। रेलवे पुलिस भी आई। यात्रियों का दावा है कि कई बार ट्रेन लेट होने पर उन्होंने स्टेशन प्रबंधक, रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। सुबह सुबह इस ट्रेन से यात्रियों का समूह अलग अलग काम से जाता है।
इसके अतिरिक्त व्यापारी अपना विभिन्न सामान कोलकाता लाते हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने कहा कि रेलवे की कोशिश रहती है कि ट्रेनें देरी ना। मैं यात्रियों से कहूंगा कि वह विरोध प्रदर्शन नहीं करें, एक जगह में हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण विभिन्न शाखाओं की ट्रेनों को रोका जा रहा है। বলছি কি নিয়ে সমস্যাটা হয়েছে? গাড়ি প্রত্যেকদিন লেট হচ্ছে রেগুলার, এই 1.5 মাস। হ্যাঁ, 5:30টার গাড়ি 6:30টার গাড়ি ছাড়ছে। আমরা অফিসে গেলে আমাদের খালি জিজ্ঞাসা করছে তোদের প্রত্যেকদিন গাড়ি লেট হচ্ছে, এই বলে আমাদের মাইনেও কেটে নিচ্ছে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मंगलवार को जामुड़िया बाजार स्थित अग्रसेन भवन में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जामुड़िया नारायणी महिला समिति द्वारा दादी का प्राकट्य उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां आसपास के आसनसोल, रानीगंज, कुल्टी, बराकर, रानीगंज आदि के साथ आसपास के भक्त इस मंगल पाठ कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां दादी का अलौकिक श्रृंगार के साथ 56 भोग भी लगाया गया और भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस संस्था की अध्यक्ष अनीता मेगोतिया ने बताया कि ये दादी का द्वारा प्राकट्य उत्सव है, जो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां राजस्थान के जयपुर से आए रवि सोनी ने अपनी सुमधुर भजनों से सबका मन मोह लिया और पाठवाचक किया। इस मौके पर अध्यक्ष अनीता मेगोटिया, सचिव सीमा अग्रवाल, मधु सिंघानिया, संगीता सिंघानिया, बबीता वालुका, सरिता बंसल, रेखा डुकानिया, सोनू संथालिया, ममता संथालिया, कौशल्या नाद, निशा चौधरी, सरिता चौधरी, सरिता मेगोटिया, बेबी जोशी, आशा गर्ग, बीना सिंघानिया, सीमा तुलसियान, अनीता बंसल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उत्सव मनाया जा रहा है। नारायणी महिला समिति के द्वारा मंगल पाठ का उत्सव मना 10वां मंगल पाठ आज उत्सव मनाया जा रहा है। उसमें वाचिका के लिए रवि सोनी दो जन आए हैं। नृत्य नाटिका के साथ आज उत्सव मनाया जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम रखे गए इस उपलक्ष्य में? इसमें हमारा जन्मदिन है, दादी का जन्म उत्सव है, दादी का ब्यावला है और दादी के भंडारा है, गजरा है, चुनरी है। पिछले कितने सालों से ये उत्सव मनाया जा रहा है? 10 साल हो गए उत्सव मनाते। इसमें कहाँ से श्रद्धालु आए? रानीगंज, आसनसोल, कलकत्ता, पुरुलिया, जयपुर, चांगल आए। और जो मुख्य पाठ करने आए वो कहाँ से, क्या नाम? जयपुर से आए रवि सोनी। आपका परिचय? मधु सिंघानिया। मेरा मैं प्रेसिडेंट अनीता मेगोटिया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल नगर निगम की तरफ से आज महान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती के अवसर पर आसनसोल नगर निगम के निकट चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, MMIC गुरुदास चैटर्जी, आसनसोल नगर निगम के हिंदी अकादमी के वाइस चेयरमैन दिव्यंतु भगत, सचिव भोला कुमार हेला, संयोजक दिनेश पांडे, इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मनोज यादव, विशिष्ट उद्योगपति और समाज सेवी पवन गुटगुटिया, मधु डुमरेवाल के अलावा शहर के तमाम साहित्यकार, आसनसोल नगर निगम के अधिकारी और अन्य विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे। यहाँ पर सभी ने मुंशी प्रेमचंद्र की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की कुरीतियों को उजागर किया। उन्होंने दबे कुचले वंचित वर्ग की कठिनाइयों को अपने लेखन के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया। জন্মদিন উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান আমরা মাল্যদানের মধ্যে শুরু করেছিলাম এবং পরবর্তীকালে আমরা বৃক্ষ দেওয়ার মধ্যেখান দিয়ে এবং আমরা যে বর্ষাকালে এবং যে গাছের অভাব রয়েছে সেই কথাটা স্মরণ রেখে ওনার দিনটাকে আরও ভালোভাবে পালন করার প্রয়াস করেছি এবং আমরা এখান থেকে গাছ দিলাম আজকে অনেক মানুষকে
তো তার জন্মদিনে সমস্ত মানুষজন, সাহিত্যপ্রেমী মানুষজন, লেখকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। আমাদের গুরুদাস চ্যাটার্জি ছিলেন, আমাদের ভোলা ছিল, দিব্যেন্দু ছিল, তাদের সকলকে নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানটা করলাম। তার জন্মদিন, তিনি যে সাহিত্যের হিন্দিভাষী মানুষদের জন্য একটা বিশেষ জায়গা দখল করে রেখেছেন, এবং শুধু হিন্দির মধ্যেই ওনাকে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না, উর্দু এবং ফার্সি ভাষাতেও উনি বই যে লিখেছেন, তার যে কথা, সেই কথাগুলোর মধ্যেখানে আমরা চাইলাম যে যাতে ওনার জন্মদিনটা সকলে সুন্দরভাবে পালন করতে পারে এবং সকলে যেন প্রেমচাঁদ মুন্সির ব্যাপারটাকে এবং প্রেমচাঁদ মুন্সির যে সাহিত্যটাকে আছে সবাই যেন জানতে পারে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीरभूम जिले में हथियारों के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। खैरासोल के बाद अब दुबराजपुर में हथियार बेचने से पहले ही एक तस्कर पकड़ा गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शेख आइनुल है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह एक सहयोगी को बंदूक, पिस्तौल और कारतूस बेचने आया था। जिला पुलिस की ओर से बुधवार को जारी बयान में इस बारे में जानकारी दी गई है। मंगलवार देर रात दुबराजपुर थाने पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर छापा मारा। रानीगंज मोरग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 से गड़गड़ाकर गांव की ओर जाने के रास्ते में एक व्यक्ति को रोका गया। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की। उसके पास से एक 2 नाली वाली बंदूक, 6 राउंड कारतूस बरामद हुई। इसके अलावा बैग में एक 7mm पिस्तौल भी थी, जिसमें 7 राउंड गोलियां भरी हुई थी। गिरफ्तार शेख आइनुल का घर खैरासोल थाने के इदिलपुर गांव में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शेख आइनुल ने स्वीकार किया है कि वह इन बंदूक, पिस्तौल और कारतूस को एक सहयोगी को बेचने आया था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि शेख आइनुल को ये हथियार कहां से मिले और उसका सहयोगी कौन है। बुधवार को आरोपी को दुबराजपुर अदालत में पेश किया गया। मालूम हो कि कल दुबराजपुर थाने की पुलिस ने रानीगंज मोरग्राम में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 14 के पुल के नीचे शराब से भरा बैग बरामद किया था। अब गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद हथियार डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 28 जुलाई को खैरासोल थाने की पुलिस ने खरीदार के भेष में एक हथियार विक्रेता को आग्नेयास्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है। अगले दिन पुलिस ने इस हथियार सौदे के मुख्य सरागना को भी गिरफ्तार कर लिया। बीरभूम जिले पुलिस ने इन 3 दिनों के अंदर 2 थाना क्षेत्रों से अत्याधुनिक हथियारों और हथियारों के सौदागरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जामुड़िया क्षेत्र के विभिन्न रूटों पर चलने वाले सभी टोटो चालक ने बुधवार की सुबह अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे जामुड़िया विधायक कार्यालय। अभी जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से चल रहे टोटो के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तथा टोटो चालकों को टोटो को पंजीकृत करने को कहा जा रहा है। बिना पंजीकृत के चल रहे टोटो पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है, जिसे लेकर टोटो चालक चिंता में पड़े हुए हैं कि उनका संसार कैसे चलेगा। बुधवार को जामुड़िया के टोटो चालकों ने जामुड़िया स्थित विधायक कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान टोटो चालकों ने बताया
कि जामुड़िया में करीब 1000 की संख्या में टोटो चलते हैं। प्रशासन द्वारा टोटो को पंजीकृत करने को कहा गया है, जिसे लेकर हम लोगों ने आसनसोल आरटीओ कार्यालय गए थे, जहां पर आरटीओ ने हमें शोरूम जाने को कहा। वहां भी हमें लौटा दिया गया कि जिसके बाद हम लोगों ने बोरो चेयरमैन के पास गए। वहां से हमें विधायक से संपर्क करने को कहा गया। आज हम लोग विधायक कार्यालय आए हैं, परंतु पता चला है कि विधायक अभी नहीं है। हम लोगों के पास बड़ी समस्या आन पड़ी है। हम लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर जीविका चलाने के लिए टोटो खरीदा है। प्रशासन द्वारा टोटो को सड़क पर चलने नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अब कहाँ जाए। अगर हम टोटो चलाते हैं तो पुलिस द्वारा हमारे ऊपर फाइन किया जाएगा, तो हम लोग फाइन कहाँ से भरेंगे। हम लोगों को यहाँ से वहाँ दौड़ाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग विधायक से गुहार लगाते हैं कि हमारे लिए कोई स्थायी व्यवस्था किया जाए, जिसमें हमारी रोजी रोटी चल सके। इस विषय को लेकर जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह से बात करने पर उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर हमारे INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक ने आरटीओ अधिकारी के साथ एक बैठक की है और सभी टोटो चालकों को 1 महीना का समय दिया गया है। उसके बाद जितने भी टोटो चालक हैं सभी को कागजात की प्रतिक्रिया की जाएगी। का समस्या यही है कि हम लोग को बोल रहा है 1 तारीख तक का कागज कराना होगा। मैंने क्या कागज टोटो का कागज कराना होगा, लाइसेंस कराना होगा, क्या कराना होगा ये अभी तक हम लोग भी क्लियर नहीं है। खाली इतना सुन रहे हैं कि कागज कराना होगा, लाइसेंस कराना होगा, टैक्स देना होगा, 20,000 लगेगा, 30,000 लगेगा, कौन करेगा, कहाँ होगा, किधर होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग का जो है कमाए यहाँ पे या MLA का आके घेराव करे या थाना जाए, कल से अगर गाड़ी पकड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग तो समाधान चाहते हैं। 3 दिन से 4 दिन से हम लोग MLA ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। चचा कल आएंगे, चचा परसों आएंगे, अभी तक का सर आए नहीं है, कोई बात हुआ नहीं है। हम लोग MLA साहब का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग का कोई एक तो बढ़िया से फैसला कर दे कि हम लोग क्या करें और कैसे चलाएं। और कागज अगर होगा तो कहाँ से होगा, क्योंकि हम लोग RTO तक गए, RTO के पास में गए, RTO से बात किए। RTO बोला कि हमारे माथा खराब करिस ना, ऐसा हमरा कुछ जानी ना, जा करबे शोरूम वाला करबे। शोरूम वाला के पास में किए, शोरूम वाला बोल रहा है कि अभी हम लोग के पास में कोई बात नहीं है। ठीक है, जो भी होगा बताएंगे। नया गाड़ी आएगा, रजिस्ट्रेशन होकर निकलेगा, ये होगा वो होगा, अभी तक कंफर्म कोई भी चीज़ मालूम नहीं है क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपका नाम? मेरा नाम MD आफ्ताब आलम। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। कोटासूर के ग्रामीणों ने कोटासूर के आराध्य देवता मदनेश्वर शिव सहित गांव के विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर बड़े धूमधाम से ग्राम देवता पूजा का आयोजन किया। इसी प्रकार मदनेश्वर शिव का रुद्राभिषेक कर ग्राम देवताओं की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। पूजा के अंत में भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कहा जाता है कि मदनेश्वर शिव मंदिर में आज कंक्रीट से बने नए नंदी महाराज की भी विशेष पूजा की जाती है। मंदिर के पुजारी इस पूजा के आधार पर अलग अलग समय पर कोटासूर के आराध्य देवता मदनेश्वर शिव की अलग अलग रूपों में पूजा करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कोलकाता में एक घर की छत से बम और आग्नेयास्त्र बरामद किए गए। बताया जाता है इकबालपुर के कार्लमार्क्स सरनी में एक इमारत की छत पर एक स्कूल बैग में बम रखे गए थे। उस स्कूल बैग से 7 बम, 4 कारतूस, एक छोटी बंदूक बरामद की गई। सूचना मिलने के बाद इकबालपुर थाने के पुलिस मौके पर पहुंचकर बम व आग्नेयास्त्र को बरामद किया। घटना के बाद से स्थानीय लोग दहशत में हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि छत पर बम किसने रखा।
রিয়াজ রবিদাস। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। नरेंद्रपुर थाना क्षेत्र के काली बाजार से सटे इलाके में मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृत युवकों का नाम विशाल महातो और कुशन मंडल है। दोनों युवक 18 साल के हैं। पुलिस सूत्र के अनुसार लापरवाही से बाइक चलाने के दौरान मोहन बाटा के सामने काली मंदिर की दीवार से बाइक टकरा गई। चालक समेत अन्य व्यक्ति बाइक से गिर गया। दोनों को गंभीर हालत में MR बांगुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पता चला है कि इनमें से किसी के सिर पर भी हेलमेट नहीं था। पुलिस ने मौके से बाइक बरामद कर थाने ले गई। ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। কটা নাগাদ ঘটনাটা ঘটে? তো অনুমান 3:30 পর। ওরা কি বাইকে ছিল? ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। चालू मानसून सीजन में बांकुड़ा में मच्छर जनित बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा खबर के मुताबिक बांकुड़ा स्वास्थ्य जिले में कुल 80 लोग मलेरिया से संक्रमित हो गए हैं। इनमें से अधिकतर रानीबांध और छतना प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं। दूसरी ओर जिले में डेंगू के मामलों की संख्या 96 है, जिनमें से 20 औंधा ब्लॉक के निवासी है, 18 अंजुरी के निवासी और 6 बांकुड़ा नगर पालिका क्षेत्र के निवासी है। सबसे ज्यादा मलेरिया और डेंगू के मरीज का इलाज चल रहा है। हालांकि बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज करा रहे कई मरीजों के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था की गई है, वहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया है कि इनमें से कुछ मरीजों को HDU या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखा गया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों में से एक के रिश्तेदार शमसुर खान ने कहा कि मैंने अपने दामाद को बुखार के लक्षणों के साथ औंधा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया, फिर उसे बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मरीज का भी इलाज यहीं पर चल रहा है। বলে এটা ফেলো, আরে ফল পড়েছে ঢাকা দেবে তো। মশা গালা এদিকে তুমি ডাম্বাটা দেখতে পাচ্ছি না, হয়তো হতে পারে নাকি। এই যে জলটা লড়াচ্ছ দেখি। নাই না নার্ভা নাই পরিষ্কার। এগুলো কি এই যে কিচকিচ যাচ্ছে ওগুলো নয়। চশমাটা বেরিয়ে যে
बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।